Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Hello dear student, I am Arvindar. Now welcome to you in my online platform. Today we have to discuss next topic in Coulomb's law, which is the principle of superposition or force act on system of multiple charges. Force act on the system of multiple charges. Okay, so आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे कॉन्सेप्टों को इजी मैनर में सीख सकें. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट. आज है फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन दी फोर्स एक्ट बिटवीन दी force act between the system of force act between the system of multiple charges. Force act between the system of multiple charges or force act between the system of multiple charges, or simply we can say that it is principle of superposition. Principle of superposition. Principle of superposition. Okay, in charges, principle of superposition of charges. Principle of superposition of charges. ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है. तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा क्या. तो हमने क्योंकि जब वो लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था या सम पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि इन कूलॉम्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड. कूलॉम्स लॉ में है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो वैलिड होता है. तो देखिए, अगर हम इसको लिखते हैं कि ये क्या होता है, तो देखें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द फोर्स एक्ट ऑन एनी वन चार्ज, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द फोर्स एक्ट ऑन any one point charge, the force act on any one, according to this principle, the force act on any one point charge due to system of multiple point charges. Force act on any one charge due to system of multiple point charges, multiple static point charges. ये बात को ध्यान रखें, multiple static point charges, the force act on any one, यहां पे भी any one static point charge लिखें, any one static point charge due to system of multiple static point charges is equal to vector sum of forces act on that static point charge, due to system of point charges, due to system of static point charges, system of static point
charges. This is the principle of superposition. या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि according to this principle the force act on any one static point charge due to the system of static point charges is equal to the vector sum of force act on that static point charge due to system of static point charges or due to individual charge present in the system. Due to is equal to the vector sum of forces act on static point charge due to system of static point charges. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सिस्टम है मल्टीपल पॉइंट चार्जेस का, उसमें हमने किसी एक स्टैटिक पॉइंट चार्जेस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है. स्टैटिक पॉइंट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो वो फोर्स उस सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सभी के द्वारा एक पॉइंट चार्ज पर लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है. इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन दैट इंडिविजुअल चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नाउ अब हम आपको प्रूफ करके बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है. सो इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं एक बार. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को प्रूफ करते हैं या फोर्स एक्ट ऑन मल्टीपल चार्जेस को प्रूफ करते हैं. तो हमने लिखना है सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस. principle of superposition of charges. ठीक है, इसके बारे में चर्चा करनी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस. So now we have to consider this is a XY plane. X axis, this is your Y axis. ठीक है, this is Y axis and this is your Z axis. These are the three axes: X axis, Y axis and this is Z axis. So now we consider that a multiple point charges having magnitude Q0, Q1, Q2, Q3 dash 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 Qn is present in XY plane. This is origin. क्या कहा? Consider n point charges having magnitude Q0, Q1, Q2, Q3 dash 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 Qn situated in XY plane. क्या बताया? Consider n number of point charges having magnitude Q0, Q1, Q2, Q3 dash 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 Q0 is situated in XY plane having position vector with respect to origin is R1 vector, R2 vector, R0 vector, R3 vector, dash 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 Rn vector. ओके, क्या बताया? कंसीडर Q0, Q1, Q2, Q3 dash 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 Qn are the point charges situated in XY plane having position vector R0 vector, R1 vector, R2 vector, R3 vector, dash 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 Rn vector respectively. Now we have to calculate the total force act on this charge Q0 due to the system of these charges. So to calculate the net force act on charge Q0, first of all we have to join these points. इनको हमने join करवा दिया like this. तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा. दिस इज द फोर्स F वेक्टर 01. ठीक है,
नाउ आपने इसको भी ज्वाइन करवाया और ये भी इसको रिपेल करेगा, सो दिस इज द फोर्स F वेक्टर 0 2। नाउ इसको भी ज्वाइन करवा दिया तो ये इनमें भी फोर्स एक्ट करेगा और ये आपका हो जाएगा F वेक्टर 0 3। इसको भी हमने इससे ज्वाइन करा दिया, इसको इससे ज्वाइन करवा दिया और ज्वाइन करवाने के बाद यहां पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो करेगा F वेक्टर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये डिस्टेंसेस आपको लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें R वेक्टर 1 0, R वेक्टर 1 0। ये डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी R वेक्टर 2 0। ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी R वेक्टर 3 0 और ये डैश 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 और ये डिस्टेंस आएगी R वेक्टर, सॉरी ये पोजीशन n 0। तो आप यहां पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे इन सबके कारण, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा यहां पे F कितना आएगा F वेक्टर आएगा और इसको हमने इससे ज्वाइन करवा दिया। ये यहां पे इस तरह से ये रिजल्टेंट आएगा, आप इन सबको ज्वाइन करवा दें, इसको भी हमने इससे ज्वाइन करवा दिया और इसको भी इससे ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, नाउ सो वी कैन से दैट द फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1, क्या लिखेंगे फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q0, यहां पे हम क्या लिखेंगे फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q0, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 Q0 पर Q1 चार्ज के लिए कितना फोर्स एक्ट करेगा, Q1 चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो हम लिख पाएंगे F वेक्टर कितना है 0 1 इज इक्वल टू K का मतलब 1/4πε0 K Q1 Q2 दैट इज Q0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर सिंपल तो हम लिखेंगे R स्क्वायर, लेकिन आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे R कैप 1 0 से। ये बात क्लियर हुई? अच्छा जी, आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा F वेक्टर 0 1 इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर और ये बन जाएगा R वेक्टर 1 0 अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर 1 0। दैट इज फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपके पास F वेक्टर 0 1 इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन मोड R वेक्टर 1 0 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 1 0, पहली इक्वेशन। क्या बात समझ आ गई? सिमिलरली क्या लिखेंगे आगे, सिमिलरली फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, सिमिलरली फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2 Q3 डैश 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 Qn। ठीक है, Q0 चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करेगा किसके कारण Q2 Q3 डैश 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 Qn के कारण, वो कितना होगा, तो इस बात को हम ऐसे लिख पाएंगे क्या F वेक्टर 0 2 इज इक्वल टू K Q2 Q0 अपॉन मोड R वेक्टर 2 0 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 2 0। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे हम F वेक्टर 0 3 इज इक्वल टू K Q3 Q0 अपॉन मोड R वेक्टर 3 0 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 3 0। ऐसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे डैश 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 और लास्ट में आपका क्या आएगा F वेक्टर 0 n इज इक्वल टू K
क्यू एन क्यू नॉट अपॉन मॉड आर वेक्टर एन जीरो का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर एन जीरो कह सकते हैं, एन नॉट कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। So this is the force applied by the individual charge on the charge Q naught। ये जो फोर्स है, ये जितने भी इंडिविजुअल चार्ज है Q2, Q3, Q4 डैश 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 Qn, ये Q naught पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। So the total force act on charge Q naught, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q naught, टोटल फोर्स act on charge Q naught due to system of charges, due to system of charges। ये चार्जेस का जो सिस्टम है उनके कारण Q naught पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप क्या लिख पाएंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर 01 प्लस F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 03 प्लस डैश 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 अप टू F वेक्टर 08। ये टोटल फोर्स एक्ट करेगा। अब हमारे पास F वेक्टर 01 की वैल्यू, F वेक्टर 02 की वैल्यू, F वेक्टर 03 की वैल्यू है, डैश 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 F वेक्टर 0n की वैल्यू है। So now we can say that put all these values of forces, put all the values of forces in given equation। ठीक है, so now क्या लिखेंगे इसके बाद आगे, put all the values of forces in the given equation, put all the values of forces, put all the values of forces in given equation। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस की वैल्यू हैं उस गिवन इक्वेशन में रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर 01, F वेक्टर 01 इज K Q1 Q नॉट डिवाइडेड बाय मॉड R वेक्टर 10 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 10 प्लस F2 की वैल्यू क्या है, K Q2 Q नॉट अपॉन मॉड R वेक्टर 20 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 20 प्लस F03 की वैल्यू पुट करेंगे तो K Q3 Q नॉट अपॉन मॉड R वेक्टर 30 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 30 प्लस डैश 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 डैश, और लास्ट टर्म जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, K Qn Q नॉट डिवाइडेड बाय मॉड R वेक्टर n0 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर n। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो वो जो भी टर्म कॉमन आ रहा है आप सबसे पहले उस टर्म को कॉमन लेंगे। ठीक है, और उस टर्म को कॉमन लेने के बाद उसको सॉल्व कर दें। तो देखिए कौन सा टर्म इसमें से कॉमन मिल रहा है आपको, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो हमारा कॉमन टर्म है वो है F वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट। K कॉमन है, K और Q नॉट, तो क्या बचा आपके पास में, Q1 अपॉन मॉड R वेक्टर 10 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 10 प्लस Q2 अपॉन मॉड R वेक्टर 20 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 20 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय मॉड R वेक्टर 30 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 30 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म क्या बना, Qn अपॉन मॉड R वेक्टर n0 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर n0।
ये बन गया। क्या बात क्लियर हुई? अच्छा, आगे सोल्व करेंगे तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट, और इन सब टर्म को हमने एक साथ ऐसे लिख दिया सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n, और ये बना qi डिवाइडेड बाय मोड r वेक्टर i नॉट होल क्यूब इंटू r वेक्टर i नॉट। क्या बात क्लियर हुई? देखिए तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, क्या क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n, सिग्मा दैट इज समेशन ऑफ ऑल टर्म। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल टर्म, जितने भी टर्म है उन सबका समेशन, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n, और ये आपका बनेगा क्या qi डिवाइडेड बाय मोड r वेक्टर i नॉट का होल क्यूब इंटू r वेक्टर i नॉट। देखिए इससे ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो i की वैल्यू 1 रखेंगे तो q1 अपॉन r वेक्टर 10 का होल क्यूब इंटू r वेक्टर 10, पहला टर्म आ गया। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम, सम का मतलब प्लस, तो यहां पर जब हम सेकंड टर्म लिखेंगे तो हमने प्लस लगा दिया, अब i की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, और जब आपने i की वैल्यू 2 रखी तो q2 अपॉन r वेक्टर 20 का क्यूब इंटू r वेक्टर 20, फिर प्लस लगाएंगे, थर्ड टर्म आ जाएगा। ऐसे डैश 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 सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट टर्म मिल जाएगा qn अपॉन r वेक्टर n0 का होल क्यूब इंटू r वेक्टर n0। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलॉम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।